السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بہار اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے مہم جمعرات کی شام ختم ہو گئی ہے، جس کے دوران اسپیکر اور کابینہ کے بعض ارکان کے بشمول 1200 سے زیادہ امیدواروں کی انتخابی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ ہفتے کو آخری مرحلے کی پولنگ میں شمالی بہار کے 19 اضلاع کے 78 حلقوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ بہار میں 3 مراحل میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں۔ 7 نومبر کو آخری مرحلے کی رائے دہی کے بعد 10 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ چین نے جمعرات کو کووڈ-19 کیسوں میں تشویش کی وجہ سے ہندوستان سے خصوصی فلائٹس معطل کر دیے ہیں۔ اب تک ہندوستان اور چین کے درمیان کمرشل فلائٹس شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن ایئر انڈیا ون ڈے بھارت مشن کے تحت خصوصی پروازیں چلائی جا رہی تھی۔ بہار کے اسمبلی الیکشن میں سیمانچل کے مسلمان بالخصوص اس بات پر ناراض ہیں کہ کانگریس نے شہریت ترمیمی قانون جیسے مسائل پر کھل کر اظہار خیال نہیں کیا اور حکومت کی مخالفت نہیں کی۔ تیسرے مرحلے کے تحت 7 نومبر کو سیمانچل میں ووٹنگ ہونے والی ہے، جہاں مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے، جن کے ووٹ فیصلہ کن اہمیت کے حامل ہیں۔ اس علاقے میں آر جے ڈی کانگریس بائیں بازو کے اتحاد کو مسلمانوں میں پسندگی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسودین اویسی کی جماعت کو چند حلقوں میں مقبولیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ سیکولر جماعتوں سے ناراضگی کے باوجود سیمانچل کے مسلمانوں کے لیے تیجسوی یادو کی زیر قیادت اتحاد کی حمایت کرنے کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے۔ جنوبی سیماریا پنچایت کے سرپنچ نسیم اختر نے بتایا کہ مقامی کانگریس ایم ایل اے نے سی اے کے خلاف احتجاج میں اس لیے حصہ نہیں لیا کہ ہندو ووٹرز کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ پپو جیسے لیڈر کھل کر سامنے آ گئے۔ مسلمان اس مرتبہ شور شرابے کے بغیر ووٹنگ کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد اس گمان میں مبتلا ہے کہ مسلمان ووٹرز خود بخود سیکولر جماعتوں کے حق میں ووٹنگ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ بعض مسلم سماجی کارکنوں نے بتایا کہ مسلمان نتیش کمار کی حکومت کو شکست دینے کے لیے نہایت دانش مندی کے ساتھ ووٹنگ کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وہ ریاست مغربی بنگال کی ممتا بنرجی حکومت کے خلاف عوامی برہمی محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کی قیادت والی حکومت کے تئیں بڑے پیمانے پر عوامی ناراضگی ہے اور اس کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ ممتا حکومت کے خاتمے کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ امت شاہ بنگال کے 100 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ممتا بنرجی نے ریاست کے عوام کو مرکزی اسکیموں سے فائدہ حاصل کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ اسکیمیں غریبوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ شیوراج سنگھ چوہان کی زیر قیادت مدھیہ پردیش کی حکومت نے کانگریس رکن اسمبلی عارف مسعود کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، جنہوں نے حال ہی میں مدھیہ پردیش کے دارالحکومت میں اقبال میدان میں ایک مخالف میکرون احتجاج مارچ منظم کیا تھا۔ مسعود کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور یونیورسٹی کے قریب کانگریس رکن اسمبلی کی عمارت کو ناجائز قبضہ قرار دیتے ہوئے منہدم کر دیا گیا ہے۔ چند دن قبل عارف مسعود کی زیر قیادت ایک احتجاجی مارچ نکالا گیا تھا، جس میں تقریباً 2000 افراد نے شرکت کی تھی۔ اقبال میدان میں منعقدہ اس احتجاجی جلسے میں چند علماء نے بھی شرکت کی تھی۔ یہ جلسہ صدر فرانس کے گستاخانہ تبصروں پر ان کے خلاف منعقد کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حالیہ زراعت اور لیبر اصلاحات کے حوالے سے عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کیا اور کہا کہ معیشت سے متعلق امور میں توقع سے زیادہ تیزی سے اصلاحات کی گئی ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ حکومت ہندوستان کو عالمی ترقی کا انجن بنانے کے لیے جو کچھ ممکن ہو ضرور کرے گی۔ 20 سرکردہ عالمی سرمایہ کاروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ خود مکتفی ہندوستان مہم کا مطلب ہندوستان ایک معاشیت بن رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ہندوستان کی ترقی کی کہانی کا حصہ بننے کے لیے موقع کی پیشکش بھی کر رہا ہے۔ بہار کے چیف منسٹر اور جنتا دل یو کے قائد نتیش کمار نے اعلان کیا کہ جاریہ اسمبلی الیکشن ان کا آخری الیکشن ہوگا۔ پورنیا میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نتیش کمار نے آج اعلان کیا کہ انہوں نے عوام سے ان کی پارٹی کی کامیابی کو یقینی بنانے کی اپیل کی اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اختتام ابھی اچھا ہی ہوگا۔ نتیش کمار نے سب سے پہلے 2000 میں چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ الیکشن ان کا آخری الیکشن ہوگا۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے دہلی کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر دیوالی تہوار کے موقع پر آتش بازی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آتش بازی کے ذریعے آپ خود اپنی فیملی کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ کیجریوال نے کہا کہ 14 نومبر کی رات 8 بجے کے بعد دہلی کے تمام 2 کروڑ شہری ایک ساتھ لکشمی پوجا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کا آغاز کریں گے جو ٹی وی پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا۔ اسی دوران دہلی حکومت نے 30 نومبر تک آتش بازی پر امتناع کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا ایک مرتبہ پھر تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں کئی ممالک میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکہ میں الیکشن کے موقع پر ریکارڈ تعداد میں کیسز سامنے آئے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک 4 کروڑ 81 لاکھ 7 ہزار سے زائد افراد کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔
और इनमें से 12,25,463 अफराद लुक़्मा अज्जल बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा 54,86,677 से ज़ायद अफराद अमेरिका में वायरस का शिकार हुए हैं, जबकि अब तक वहाँ 2,33,730 अफराद हलाक हो गए हैं। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुखालिफ ट्रंप एहतजाजी 24 साला लड़की ने पुलिस के चेहरे पर थूक दिया और चीखते हुए कहा कि तुम लोग फाशिस्ट हो। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुखालिफ ट्रंप एहतजाजी लड़की को गिरफ्तार कर लिया और इस पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया है। अमेरिका भर में कई शहरों में मुखालिफ ट्रंप मुजाहरे हो रहे हैं। चारशंबे को मक्के मुअज़्ज़मा में बारान रहमत के बाद न सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया बल्कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए मोतमरीन भी इस मौसम से सरशार हो गए। बारान रहमत के दौरान भी बैतुल्लाह में ज़ायरीन और मोतमरीन की आमद और तवाफ़ काबा के सिलसिला जारी रहा। बारिश में तवाफ़ काबा और मस्जिद हरम में इबादत के रूह परवर मनाजिर सामने आए हैं। हैदराबाद में बारिश और सैलाब की गैर मामूली तबाहकारियों से अवाम अभी उभर भी नहीं पाए कि अवामी नुमाइंदों ने इनकी इमदाद और बाज़ाबादकारी के बजाय खुद को बिहार की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ कर दिया है। बारिश और सैलाब के नतीजे में पुराने शहर के असेंबली हल्क़ात चंद्रान गुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, नामपल्ली और कारवान के कई इलाके मुतासिर हुए, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद ख़ानदानों का नुकसान हुआ। जानी नुकसानात तो कम हुए लेकिन अमलाक को नुकसानात ने मुतासरा ख़ानदानों की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। लॉकडाउन के नतीजे में अवाम पहले ही परेशान थे और बारिश ने इनकी परेशानियों और मसाइल में इजाफा कर दिया। हुकूमत ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए फौरी तौर पर 10,000 रुपये की इमदाद का ऐलान किया और फौरी तौर पर तकसीम का आगाज़ हुआ, लेकिन तकसीम के अमल में बेकायदगियों और पार्टी के हामियों में तकसीम की शिकायत मिलने के बाद हुकूमत ने इमदादी रकम की तकसीम को रोक दिया। पुराने शहर के असेंबली हल्क़ात में आज भी हज़ारों ख़ानदान हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुकामी जमात की जानिब से असेंबली हलकों में करोड़ों रुपये तकसीम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकी मुतासरीन की कसीर तादाद रकमी इमदाद से महरूम रही। हुकूमत ने इमदाद की तकसीम के काम को रोक दिया, जिस पर शहर के कई इलाकों में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मुतासरीन की नाराज़गी और मुजविदा बल्दी इंतखाबात में सियासी नुकसान के अंदेशे के तहत हुकूमत ने इमदाद की दोबारा तकसीम का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी के ऐलान के बावजूद अभी तक ओहदेदारों ने मुतासरा इलाकों में तकसीम अमल में नहीं लाई। ऐसे वक्त जबकि मुतासरा अवाम को इमदाद की फरहमी और मुतासरा इलाकों में सफाई का काम अंजाम दिया जाना बाकी है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर मुनक़िद करने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद अंदेशा था कि बल्दी इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल शुरू करके इशारा दिया है कि इंतखाबात जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होंगे। बाखबर ज़राए के मुताबिक मुतासरा इलाकों में राहत और इमदादी कामों में हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि राहत और इमदादी कामों को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से मुस्तस्ना करार देने की अपील की गई है, ताकि इंतखाबी इलामिया की इजराई के बावजूद मुतासरीन में इमदादी काम जारी रखे जाएँ। हुकूमत शहर में नवंबर और दिसंबर के दरमियान बाज़ नए तरक्याती प्रोजेक्ट के आगाज़ का मंसूबा रखती है। फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी का काम 13 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इलामिया जारी कर सकता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद हुक्काम ने सफाई के इंतजाम पर तवज्जो नहीं दी है। कई मुतासरा इलाके आज भी कचरा और गंदगी का सामना कर रहे हैं। वबाई अमराज फैलने के अंदेशे के तहत वज़ीर बल्दी नज़वनस KTR ने शहर के तमाम सर्कल्स में सफाई की खुसूसी मुहिम की हिदायत दी। KTR खुद इस मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद रहेंगे, जिसका मकसद शहर के तमाम इलाकों में कचरे की सफाई के अलावा बारिश से गिरे दरख्तों और तामीराती मलबे की सफाई शामिल है। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि खस्ता और बोसीदा इमारतों का तख्लिया कराते हुए मुनहदिम किया जाए। मेयर बी राम मोहन ने कमिश्नर बल्दिया और दीगर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद करके सफाई मुहिम की हिदायत दी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज 2021 इलेक्शन प्लान का ऐलान किया, जिसके तहत 7 नवंबर से आज़मीन हज से ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने मुल्क की तमाम हज कमेटियों को एक्शन प्लान की तफसीलात रवाना की है। मुल्क भर में 7 नवंबर से ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ होगा और 10 दिसंबर दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख रहेगी। एक्शन प्लान के मुताबिक जनवरी में कुरान अंदाजी के जरिए आज़मीन हज का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर में मरकजी हुकूमत का वफ्द सऊदी अरब का दौरा करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी हज मुआहिदे को खतियत देगा। आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर को स्कूल दोबारा खोले जाने के बाद 262 तलबा और 160 टीचर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं। ये स्कूल्स 9वीं और 10वीं जमात के लिए खोले गए थे। स्कूली तालीम महकमे के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। कमिश्नर स्कूली तालीम डी चिन्ना वेरा भद्रा राव ने कहा कि मुतासरा तलबा और असातिज़ा की तादाद तशवीशनाक नहीं है। हैदराबाद पुलिस की टास्क फोर्स ने एक आदि साजिश को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से लाखों रुपए के मसरूक़ा तिलाई ज़ेवरात और नकद रकम बरामद कर ली।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 25 साल एन विनोद कुमार साकिन बालाजी नगर बालापुर मंडल एक आदि सारिक है और वो अब तक हैदराबाद और रच्चाकुंडा इलाकों में 20 तरक्की की वारदातें अंजाम दे चुका है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से 2019 के दरमियान विनोद कुमार 42 तरक्की की वारदातों में मुलविस था और 3 मरतबा इस पर पीडी एक्ट नाफिज किया गया था। कमिश्नर ने कहा कि जनवरी 2020 में जेल से रिहा होने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज ना आया और इलाके चारमीनार, मीरपेट और दीगर इलाकों में सरक़े की वारदातें अंजाम दिया। टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने विनोद कुमार को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 45 तोले मसरूक़ा तिलाई जेवरात जिसकी मालियत 17,50,000 बताई जाती है और 1,25,000 नकद रकम जब्त कर लिया है। गैर कानूनी तौर पर मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर अवाम को धोखा देने वाले 3 रुकनी टोली को टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधा किशन राव ने कहा कि हदमन लाल कुमार अपने 2 साथियों मिलन गोपाल जी और निरपत जैन की मदद से शहर के इलाके एबिट्स में ये कारोबार चला रहे थे। उन्होंने कहा कि कुमार का ताल्लुक राजस्थान के ज़िला पाली से है और वो दिल्ली के एक न्यूज़ चैनल में काम कर रहा है। बताया जाता है कि ये शख्स ने हाइप नेक्स्ट के नाम से एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम मुतारिफ की और कई अफराद से इसमें सरमायाकारी के बहाने रुकूमात हासिल कर रहा था। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के रुकूमात हासिल करने के बाद सरमायाकारी के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का दावा करते हुए अवाम को धोखा दे रहा था। महकमा सेहत ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो आइंदा 3 माह तक बैरूनी रियासत सफ़र से गुरेज करें क्योंकि मुल्क की कई रियासतों में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। तेलंगाना को कोरोना की दूसरी लहर का खतरा है, लिहाजा महकमा सेहत ने अवाम को तातीलात या दीगर ज़रूरियात के सिलसिले में सफ़र से मना किया है। रेलवेज और एयरपोर्ट हुक्काम की जानिब से मुसाफिरीन के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल गाइडलाइंस जारी की जा रही है। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अंदरून रियासत के अलावा दीगर रियासतों के लिए बस सर्विसेज का आगाज़ कर दिया है। खासतौर पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए बस सर्विसेज के आगाज़ के नतीजे में पड़ोसी रियासतों से कोरोना केसेस की मुंतकली का खतरा बढ़ गया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जय वेंकट ने अवाम को मशवरा दिया कि वो कोरोना की दूसरी लहर की संगीनी को महसूस करते हुए सफ़र से गुरेज करें। तेलंगाना में एक तरफ महकमा सेहत के अहदेदार कोरोना की दूसरी लहर के इम्कानात से चौकस हैं तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान रियासत में अलामत के बगैर कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद ने तशवीश में इजाफा कर दिया है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 10 दिनों में रियासत में कोरोना के जो नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं इनमें अक्सरियत ऐसे मरीजों की है जिनमें कोरोना की कोई अलामत नहीं पाई गई। अलामत के बगैर कोरोना के मरीजों का पता चलाना टेस्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा महकमा सेहत के अहदेदारों को अंदेशा है कि ऐसे अफराद दूसरों में वायरस फैलाने का सबब बन सकते हैं और गैर अलामती कोरोना के मरीज रियासत में दूसरी लहर के जिम्मेदार होंगे। रियासती वजीर बल्दी नजवनस KTR ने 100 करोड़ रुपए के मसारिफ नागार्जुना सागर के पास 275 एकड़ अराजी पर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क तामीर करने का ऐलान किया है। ट्विटर पर यह इत्तला देते हुए KTR ने कहा कि रियासत में सयाहत को फ़रोग़ देने और तारीखी वर्सा की हिफाजत और इसकी अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद इन सयाहती मुकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है जिसको माजी में नज़रअंदाज कर दिया गया था।